Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 28 of the policy analysis class. Now we are gradually moving towards the closing stages. I am sure you'd be looking forward to it. As are all students. When we used to be students, when I used to be a student, I always at this particular stage of the semester or the lectures or the class, I would really be looking forward to the end of it. So I'm sure you would be looking forward to the end of it too. But we have some stuff left to cover. So let's start with the lecture and see what is over here. Now there is a difference in this lecture from the previous ones, that we are not going to discuss first of all what we covered in the previous lectures. In the previous lecture I left it over because we didn't have enough time, and I was doing that graphical analysis of income and substitution effect and the total effect of a price change when we had to end the lecture. So let us do that first and then to show you another graph of the income and substitution effect and how we divide that, and then we'll move forward to other things, and then we'll say that previously we discussed this thing and this thing. So I thought that before discussing the previous lecture in whole, I need to do this, need to go over this again in order to just to clarify to the student what is going on over here. And then as we gradually progress, most of these coming lectures would be all about the practical implementation or the practical policies in public life and how do we deal with it. I'm sure in this lecture and in the next few lectures you're going to see the practical implementation of policies, public policies. You're probably going to be listening to a podcast in this lecture too, but then we'll be discussing policies like price support policy. That is an important part of government's role in the economy, price supports and what it does. Then we'll also be discussing price ceiling, price floors, education voucher schemes, what happens to the price of oil and electricity when it changes, would a rebate help, this kind of stuff that we'll be discussing over here. This is, as you can realize, this is most of it is related to everyday policies, and this is more on the practical side. So let's first start from where we left in the last lecture, and that was the graphical analysis of the total effects of a price change. So let us do that again. Let us go through that quickly. So the normal the x and y axis, you have other goods over here. I believe that is how we did it in the last lecture. Let's just call them y, and you have the x-axis over here, which is for good x, the one that we are talking about and analyzing. So remember, there was this price change from rupees 50 to rupees 100, and the total income was ₹1,000. So what happened when the price changed? Price changed from rupees 50 to rupees 1,000. First of all, what we did was that originally, if it is rupees 50, so if you divide the 1,000, the total income, by 50, you would be able to afford 20 units. So suppose 20 is over here, and this one shows the total income. So you join these 2 points, and this would be your budget line. This is 20 units. This is the total income of 1,000 rupees.
Now again briefly to go through all those basics. If it is 20 units, it's 20 units because this is if you expend or you spend all the 1000 rupees of your income on this particular good, but in real life, as you would imagine and as is the reality, that not all income is spent on only one good. In fact, it is spent on a combination of good. So for the sake of argument, for the sake of understanding, suppose that we consume a mixture of these two goods. So what would be half of this good and half of the other good? So over here, half of this good would be what? 10 units. Let's do the 10 units over here and extend the 10 unit line up till the budget line. It will come something, and then extend it to y-axis. So we are spending half the 10 units that we are consuming, that would consume the rupees 500 or 1000, and the other 500 would be spent on all other goods, these goods. Now in order to show where the consumer is from the point of view welfare, what you show graphically from the point of view consumer is that you draw an indifference curve over here that touches this point. Remember, it touches this point. This is the important part. The point of consumption on the budget line. This is where the indifference curve should touch. And the reason that it should touch is, although I'm not going to ask you, but you should remember, is that if it touches, it means that maximization of satisfaction at this very point. You don't need to. We don't need to just discuss more about this point. Just for your understanding, I'm letting you know. Now suppose there is this change in income from rupees 50 to 100. So what would be the new total consumption of good X? That would be 1000 divided by 100, 10 units. So now you can afford 10 units. So what happens to the budget line? Now remember, when it was 20 units, it was over here and we combined it with the total income. Now it's 10 units. So you extend the line over here. This is your new budget line. You have moved from BL to, suppose we call this new budget line BL2. The older one is BL1, the new one is BL2. This line, this is BL2, the budget line 2. Now again, when you can only consume 10 units, you won't be consuming all of X, which is the reality. You would be consuming, for our sake of argument, we say that we'd be consuming only half of this X and half of other goods. So half of other goods is again same 500 rupees, because your income is still 1000 rupees. Income hasn't changed, price has changed. Try to make that distinction. So 500 rupees on this good, and now we are consuming half of what we can consume of X. So that would be 5 units over here. So now we've seen that the consumer is now consuming a combination of the goods, in which good X is 5 units and the other goods are worth rupees 500. I'm not mentioning the units, but just making the set. So this is your set over here. Now what would happen in reality is that the income and substitution effect over here, we are considering the normal good, not an inferior good. This, suppose, is the case for normal good. Let me just mention it just to clarify. And what was the definition of normal good? What we stated about normal good was that the direction of change of price, it tends to be opposite to what happens to substitution and income effect. Now over here, what you would end up with is that you will end up with 2.5 units of consumption of good X, and then
perhaps more units of this one, the good buy, and I'll let you know why that would be. Let's suppose it goes up to 750. It comes to 2.5. That is what we would expect to happen in terms of a normal good. Why not 5? Why 2.5? Why is that the case? We'll just see why that would happen. But anyway, this is 2.5, this is 5, and ultimately where you end up, your consumption end up, you will draw an indifference curve, that is IC2, and this is your final bundle of consumption, 2.5 and 750. Now, how do you determine the loss in welfare? The loss in welfare, remember I said that it's the movement from IC1 to IC2, indifference curve 2, from over here to over here. That's a loss in welfare, and it leaves the consumer worse off. Remember I said in the last lecture 2 or last video 2 that a movement from higher IC to a lower IC equal to loss in welfare, because there is a loss in consumption. So over here, this is the total effect. Total effect, in the last lecture I believe I didn't mention it right, but total effect of a price change is that you would ultimately end up from 10 units to 2.5 units. This is the total effect. Now why would you end up at 2.5 units instead of 5 that we just discussed? I'll just let you know, I'll clarify this, but this much should be clear to you before we move on. अच्छा, अब यहाँ पे once again आपको बताता चलूँ कि in reality यहाँ पे हो क्या रहा है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इससे पहले कि हम मजीद प्रोसीड करें और एग्जांपल्स की तरफ। इस ग्राफ में हमने जो स्टडी की जो चीज़ वो ये थी कि एक कोई भी गुड है, कोई भी चीज़ जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज खाने पीने की कोई चीज़ है, उसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, फिर 100 रुपए होगी, तो उसका टोटल इफेक्ट क्या होगा। इस ग्राफ में इस चीज़ को हमने पहले डिस्कस किया कि अगर उसकी कीमत पहले 50 रुपए है तो टोटल यूनिट्स कितने हम कंज्यूम कर सकते हैं अगर सारा बजट उसी चीज़ पे लगाना चाहें। तो देखा हमने कि अगर 1,000 के 1,000 रुपए उसी गुड पे हमने लगाने हैं जो एक्स है, तो हम उसके टोटल 20 यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं। अब हकीकत में क्या होता है कि आप किसी एक चीज़ पे, कोई भी हम में से कोई भी जो होता है वो किसी एक चीज़ पे खर्चा नहीं करता, किसी एक गुड पे, कॉम्बिनेशन में होती है। यहाँ पे हमने अपनी आसानी के लिए ये जूम कर लिया कि चले जी उस 20 में से सिर्फ आधे हम कंज्यूम कर रहे हैं, आधे वो दूसरे गुड्स पे लगा रहे हैं। तो ये यानी कि ये जो पॉइंट आ गया इस पे किस तरह इसको शो किया जाएगा, यहाँ पे हम इसको शो कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको 10 यूनिट यहाँ पे हम कंज्यूम कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसके 500 रुपए के इक्विवेलेंट जितने भी यूनिट्स अदर गुड्स के बन गए। मैं इसलिए कोई यूनिट्स नहीं लिख रहा क्योंकि हमें उसकी कीमत ही नहीं पता, हमने सिर्फ ये सपोज कर लिया कि जी वो अदर गुड्स हैं जितने भी हैं। तो ये हमारा कंजम्पशन बंडल बन गया ओरिजिनल, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो है ये वाली है, IC1 है। अच्छा, उसके बाद जब कीमत बढ़ जाती है, 50 से 100 रुपए हो जाती है, तो फिर हम कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं। बजट लाइन के साथ क्या होता है आपकी, बजट लाइन के साथ ये होता है कि देखें जब कीमत बढ़ जाती है 100 रुपए हो जाती है तो फिर हम सिर्फ 10 यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं, पहले 20 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे। तो बजट लाइन जो है, जिस तरह 20 को हमने 1000 से मिलाया था, फिर 10 को हमने 1000 से मिला दिया, ये हमारी नई बजट लाइन बन गई। इसी बजट लाइन पे ही हमारा कोई नया जो वो कंजम्पशन सेट है, क्योंकि इससे ज्यादा बार हम कंज्यूम कर नहीं सकते, इसके अंदर ही रह के कंज्यूम कर सकते हैं, या इसके ऊपर रह के आना इसलिए चाहिए, इस पे जो शो कर रहा हूँ इसके ऊपर इंडिफरेंस कर्व बन रही है, इसके अंदर नहीं बन रही, क्योंकि हम ये सपोज करते हैं कि यूटिलिटी अपनी मैक्सिमाइज कर रहा है, इनकम कहीं ना कहीं खर्च हो रही है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, विच इज द मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। खैर, यहाँ पे आके अगेन वही बात हुई जिस तरह हम पहले कह रहे थे कि अगर 10 यूनिट अफोर्ड कर सकता है वो गुड एक्स के, तो जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 ही खरीदेगा। हकीकत में ये होता है कि
वो कॉम्बिनेशन खरीदेगा। अपनी आसानी के लिए हमने दोबारा ये सपोज कर लिया कि आधे वो यूनिट्स जो है बजाय 10 के वो 5 खरीद रहा है और बाकी जो पैसे बच रहे हैं वो मजीद आधे गुड्स पे लगा रहा है। जो ग्राफिकल एनालिसिस है, जो इकोनॉमिक्स है, वो ये प्रेडिक्ट करती है कि इस 5 से भी अल्टीमेटली जो कंजम्पशन होगी आखिर में जो सेट बनेगा वो इस 5 से भी कम होगा, इस 5 से भी आधा होगा, वो कहीं 2.5 पे होगा। और इस 2.5 की वजह से इधर से जो 2.5 तब्दीली आई है 5 से 2.5, उसको वो मैच करेगा कंज्यूमर जो इस पे कम खर्चा कर रहा है, चूंकि ये 5 से 2.5 पे अब आ गई है ये चीज, तो अब उसको वो मैच करेगा कि 500 से अपनी कंजम्पशन बढ़ा देगा 750 पे दूसरे गुड्स की। क्यों आती है 5 से 2.5 पे और फिर 750 पे क्यों जाती है? ये जो इधर से इधर तक आती है या इधर से फिर इधर चली गई, इसकी वजह है इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको कि वो किस तरह बनती है। ये इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होते हैं। इनकम इफेक्ट जो होता है, याद करें कि वो क्या होता है, रिकॉल इट, व्हाट वाज द इनकम इफेक्ट? इनकम इफेक्ट ओवर हियर इनकम इफेक्ट जो था इट रिलेटेड टू परचेजिंग पावर। ये इनकम इफेक्ट हो गया। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या था? आई एम नॉट राइटिंग इट एज अ होल, जस्ट राइटिंग इज इन एब्रीवेटिंग। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट it relates to substitution in terms of price change. ये दोनों चीजें मैंने रिपीट कर दी ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो 10 से 5 पे मूवमेंट हो रही है और 5 से 2.5 पे जो मूवमेंट हो रही है, देखिए 10 से जो 5 तक मूवमेंट हुई है ना जी, इसको ये हुई है इनकम इफेक्ट की वजह से। पहले जिस तरह 20 से 10 पे मूवमेंट हुई थी और फिर अब 10 से 5 पे जो मूवमेंट हो रही है, ये वो जो टोटल इफेक्ट है ना जी, टोटल इफेक्ट का ये पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक, ये इनकम इफेक्ट है। इट इज द डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर, कि जो कीमत एक्स की बढ़ी है उसकी वजह से जो हमें कंजम्पशन कम करना पड़ी है, वो इनकम इफेक्ट होती है। ठीक है जी। तो यहां पे इनकम इफेक्ट 10 से जो 5 तक मूवमेंट हुई है, इसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। इसको हम वी लेबल एज एट इनकम इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? अब ये तो सिर्फ इनकम इफेक्ट था। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि जो चीज महंगी होगी है, नॉर्मल गुड के उसमें हम बात कर रहे हैं। याद रखिएगा ये नॉर्मल गुड है। ये आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि जब पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस होते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो सारे गुड्स को एक ही जगह पे तकसीम कर देते हैं कि जी सारों पे एक जैसा असर होगा। सारों पे एक जैसा असर नहीं होता, ये गलत है। सारों पे एक जैसा असर नहीं होता। गुड की नेचर पे डिपेंड करता है, वो नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड है, और क्या सब्स्टिट्यूशन उसकी, और इसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस एज अ पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट। यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थिंग्स। सो दिस इज अ नॉर्मल गुड। मैं नॉर्मल गुड की बात कर रहा हूँ। इसमें हमने इनकम इफेक्ट देख लिया कि जी 10 से हमें 5 तक ले गया कंज्यूमर को, चीज महंगी हुई है। अब उसके बाद रह गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब यहाँ पे जब कंज्यूमर ये देखता है कि मेरे पास क्या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबिलिटी है, क्या इसका कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट मौजूद है इस गुड का, अगर है तो फिर ये 5 से 2.5 तक मूवमेंट होगी। ये जो 5 से 2.5 तक मूवमेंट है, ये होगी आपकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्यों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगी? वो इसलिए कि उसका कोई मुतबादिल मौजूद है, यानी ये जो अदर गुड्स हैं वाई जितने भी हैं, उसमें कोई ना कोई इस एक्स का मुतबादिल मौजूद है जो कि महंगा हो गया।
जो कि चीज महंगी होगी है, तो उस मुतबादिल की तरफ जाएगा वो। ये जो एक सिर्फ है कि जो लॉस इन परचेजिंग पावर है वो तो 10 से 5 तक आ गया, लेकिन फिर जो मूवमेंट होती है कि वो उस मुतबादिल की तरफ जा रहा है इस गुड की बजाय, वो 5 से 2.5 तक होती है। इसीलिए ये मूवमेंट्स, ये जो आपके 5 से फिर 2.5 पे है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से होती है, और 10 से जो 5 पे है वो इनकम इफेक्ट की वजह से होती है। अब देखिए ये केसेस में आपने डिस्टिंग्विश किया, हमने डिस्टिंग्विश किया कि 5 से 2.5 पे क्यों आ गई, इसलिए क्योंकि उसके अच्छे मुतबादिल मौजूद है। Elasticity, in terms of elasticity, what does that mean? The presence of good substitute, what does that mean? Do you remember elasticity, what we studied? Try to recall this. Try to recall this. What is happening over here? What is elasticity? What this particular example, this movement from 5 to 2.5 or from 10 to 2.5 as a total effect, what does that say about the demand elasticity, the demand curve's elasticity for this good X? Recall. I'll give you a few seconds. Come back. Try to answer this question. This is important from the point of view of analysis. Think about it. So hopefully by now you have the answer for what I asked you. In case you don't, it's unfortunate. I'm going to draw and just let you know what it is. But hopefully by now you've grasped this concept and correctly answered the question. In case of this good, this particular good X, the elasticity over here, the demand elasticity, that would be elastic. And why is that? Because this movement in price from over here to over here, in fact it would be something like this. Sorry, this would be the demand curve, which is elastic demand curve. So if there is movement over here from here, this would be the price change. Let me just draw it again. My apologies, it's not the clearest one. It might not be very clear to you over here. So here we are again. Let me draw this again, this one again. You have the usual y-axis and the x-axis. This is x good, this is good y, and I asked you the question that what does this movement show from over here from 10 to 2.5? What does that tell you about the elasticity of demand? And I said that this is elastic. The reason is that if you draw an elastic curve like this, this is an elastic demand curve. Remember the inelastic one is a bit steep like this. So anyway, there is this, this is the price, this is the consumption, and the price increases. What will happen to the consumption? Price increases, consumption would decrease. So this is elastic demand curve, and in this case, in the case of a normal good, you have an elastic demand curve. Remember that when we were talking about the normal and inferior good in the last lecture, and I gave you this rule of thumb. I told you this rule of thumb. Rule of thumb was that look at all the possibilities of how much is it a part of, what percentage is it a part of the total income, and then look at the elasticity. So over here you find that the elasticity over here is it's for good X, it's elastic. That's why consumers move away. In terms of income effect and substitution effect, it will be in opposite direction to the price change. Now this is the case for a good which is normal. What would be the case for a good that is an inferior good? Do you recall what is inferior good? Go back to the previous lecture if you can't recall. Replay what I said about inferior good or read about it again, and this should make you you should be able to answer this question easily. Now suppose if this
good X is inferior, what do you suppose that, what do you think, where do you think the movement will be of income effect and the substitution effect? Now think about it, and let us just come back and I'll try to show it to you on a diagram, on a much clearer one, what we expect the movement to be. So try it and we'll come back and see what you got over there. So welcome back. I hope by now that you have the answer for my question, just as I asked you about elasticity, and now it's about the substitution and income effect, the direction of substitution and income effect in case the good is inferior. We talked about the normal good, this one is about the inferior good over here. So suppose this is the inferior good. Happens. So this is all other Y goods, this is X good. Now I'm not going to draw all those curves again, I'm just trying to show you what will happen, just to make you, this is the original budget line and this is the budget line that was the new budget line because the prices increased, and somewhere over here you had this new consumption bundle like this, you had the original one over here. You can refer to the previous diagram that we just drew in order to just to clarify this thing, what is happening over here. But anyway, and what did we say about the total effect? The total effect over here was, I think, 10 to 2.5. This was the total effect, sorry, TE, the total effect. And in this total effect, from this point to this point, the movement over here, that was the income effect, and from this point to this point, the movement was in this direction was substitution effect. Now this is a case, this was the case of a normal good. Let us just talk about an inferior good now. Suppose X is an inferior good. Okay, so X is an inferior good. Now look what happens. The income, the total effect, that would not be the same, which is in case of a normal good. So let me just show it again. What would you expect when it comes to, let's just erase this in order to show this, all this again of what I intend to do over here. Okay, back to the picture, and now we shall see what happens over here. So we are saying that the price of a particular good has increased. So you have an income effect, you have a substitution effect, and in normal goods case it was they were both in this direction. But suppose that X good is an inferior good. What would happen if the price of good X in terms of the others, it increases? Would it reduce the consumption or would it increase the consumption? What would happen? In this case, of course, being a good X, being a good being consumed, you have this change in the purchasing power, you have this change in income. So before this price change from rupees 50 to 100, you could consume the 20 units, and now you are down to 10 units due to 100. So definitely there would be an income effect. Income effect of this good, which is an inferior good in this case, it will take you from this to this point, 10 to 5. Now where the difference comes is in the substitution effect. Remember, we said that in case of normal goods, you have this presence of these substitutes from which you can move towards. Now suppose those substitutes are inferior goods which you had already given up.
because your income was good. Now because of inflation and reduction in your purchasing poverty, in the case of normal goods, you didn't have the buying power to purchase that much of good X, so you shifted to the inferior goods, which would be in other categories like this one. But if X itself is inferior, what would happen is that the substitution effect would be in opposite direction. It will be in this direction. And why is that? Because there is no substitutability from an inferior good to a normal good. Normal good से inferior good पे बंदा आ सकता है, लेकिन inferior good से जब कीमत बदलती है inferior good की, normal good पे नहीं जा सकता जब कीमत बढ़ रही है. मैं कीमत कम होने की बात नहीं कर रहा, कीमत बढ़ने की बात कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा. अब कीमत बढ़ रही है इस गुड X की, ये बेशक inferior good है, लेकिन फिर भी इससे जो है कीमत बढ़ने की वजह से आप नॉर्मल गुड पे नहीं जा सकते. नॉर्मल गुड पे आप उसी वक्त जा सकते हैं इस इंफीरियर गुड को छोड़ के जब कीमत जो है कम होगी या आपकी तनख्वाह या इनकम आमदन बढ़ गई, तो फिर आप नॉर्मल गुड पे चले जाएंगे क्योंकि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं. यहाँ पे हमने इनकम की बात ही नहीं की, हम कह रहे हैं कि इनकम वही 1000 रुपए है. अब ये इंफीरियर गुड है, इससे आप नॉर्मल गुड पे जा नहीं सकते. तो होगा क्या कि ठीक है कि वो परचेजिंग पावर जो है उसकी वजह से जो आपकी कम हुई है, तो ये गुड X की कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, लेकिन इतनी कम नहीं होगी जितनी नॉर्मल गुड के केस में होते हैं. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, चूंकि सब्स्टिट्यूट यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट अवे फ्रॉम इट, तो वो इट विल एक्ट ऑपोजिट टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इन दिस केस देन जो टोटल इफेक्ट होगा आपका वो होगा 10 से 5 तक. सो टोटल कंजम्पशन will remain from 10 to 5 instead of 10 to 2.5 जैसा कि नॉर्मल गुड के केस में था. लेकिन चूंकि ये इंफीरियर गुड है, इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्ट्स ऑपोजिट टू इनकम इफेक्ट, thus cancelling out a portion of the total effect. याद रखिएगा टोटल इफेक्ट जो होता है वो इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, लेकिन जब दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के एक्ट कर रहे होंगे, दोनों मुखालिफ समेत में होंगे, तो वो एक दूसरे का जो थोड़ा सा असर है उसको कैंसिल करेंगे. लेकिन अगर नॉर्मल गुड के केस में जैसा कि हमने देखा था कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जो कि प्राइस चेंज के मुखालिफ डायरेक्शन होती है, तो इस वजह से वो इफेक्ट ज्यादा होता है. इस केस में जो इंफीरियर गुड का केस है, इसमें इफेक्ट होगा, कंजम्पशन कम होगी एक गुड की जिसकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन इतनी कम नहीं होगी जितनी कि नॉर्मल गुड के केस में होती है. और वजह क्या, जैसा कि अभी मैंने बयान किया कि इसका कोई मुतबादिल नहीं है जब कीमत ज्यादा हो रही है. अब कीमत जब ज्यादा हो रही है तो नॉर्मल गुड की तरफ जा ही नहीं सकते, वो ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है. आप जब इंफीरियर गुड की ही कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो नॉर्मल गुड का तो सोचे ही ना, क्योंकि वो तो उसी सूरत में हो सकता है जब आपकी आमदन बढ़ गई है या इंफीरियर गुड की कीमत कम हो गई है, इस सूरत में हो सकता है. मिसाल के तौर पे अब अगर मैं बात करूं कि इंफीरियर गुड की कीमत बजाय 100 रुपए के वो कम हो के 50 रुपए हो गई है, तो आपके ख्याल में क्या होगा? देखें, फिर ये होगा कि इन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की. इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होगा वो दूसरी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इनकम इफेक्ट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में होगा. अब वजह क्या है, इसमें कौन सा इफेक्ट आपके ख्याल में स्ट्रांग होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड? सपोज, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन टू क्लेरिफाई. सपोज price
of inferior good decreases. Don't get confused, I am going to explain it. Don't worry. It might take some time. This one does take some time क्योंकि थोड़ी सी distinction इसमें करनी पड़ती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, confuse होने की ज़रूरत नहीं है. I'll clarify it again. Suppose price of inferior good decreases. पहले हमने बात की इंक्रीज की, तो जब डिक्रीज हो रही है तो सिंपली ये करें आप, उसमें सिंपली चेंज ये आएगा कि डायरेक्शन of income effect and substitution effect changes. अगर यानी पहले अगर इनकम इफेक्ट इधर जा रहा था तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो इधर जाएगा. अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इधर जा रहा था तो वो चेंज होके इधर जाएगा. अच्छा, अब उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? देखिए, इनकम इफेक्ट तो ये है कि आपको मजीद कंजम्पशन की तरफ लेके जाएगा. अब जो गुड एक्स है यानी इंफीरियर गुड, उसकी कीमत कम होगी है, तो फिर तो उसको ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि अब हम ज्यादा उसको खरीद सकते हैं उसकी कीमत कम होने की वजह से. सपोज पहले 10 यूनिट खरीद सकते थे, अब हम 20 यूनिट खरीद सकते हैं क्योंकि उसकी कीमत कम होगी है, अपनी आमदन में वो खरीद सकते हैं. लेकिन इस चीज को दोबारा याद रखिए, ये चीजें आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेंगी, इसमें डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी. सब इंफीरियर गुड का हमने ये कहा था कि अगर जो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो हम इंफीरियर गुड से फिर नॉर्मल गुड की तरफ जाते हैं. तो ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है उलट जा रहा है. यहाँ पे मैंने आपको कहा कि इंफीरियर गुड के केस में अगर उसकी कीमत कम हो जाती है तो वो बजाय कम होने के वो ज्यादा होने के वो इस तरफ जोर करेगा, इस तरफ इसकी यानी कम कंजम्पशन की तरफ जोर करेगा. वो क्यों? क्योंकि अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो आपको लेके जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल गुड. चूंकि अब परचेजिंग पावर या इस्तेदाद जो है वो कुव्वत खरीद बढ़ गई है, तो जो इंफीरियर गुड की क्वालिटी ये है कि जब कुव्वत खरीद बढ़ जाती है तो इंफीरियर गुड से लोग मुतबादिल की तरफ आते हैं नॉर्मल गुड की तरफ. तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ये नॉर्मल गुड की तरफ आएगा. तो बजाय इसके कि हम ये एक्सपेक्ट करें, जो प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन है, जो प्रोबेबल हम हाइपोथेसिस है, वो ये है कि बजाय इसके कि कीमत जो है उसकी कम होने की वजह से जब परचेजिंग पावर या कुव्वत बढ़ जाती है, कुव्वत खरीद बढ़ जाती है, कि कंजम्पशन इंफीरियर गुड की 5 से 10 पे आ जाए, जो कि इनकम इफेक्ट बताता है, वो रहेगी 5 पे ही, वो रहेगी 5 पे ही या इससे भी कम हो जाएगी. क्यों? वो इसलिए क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें ये बताता है कि गो टुवर्ड्स नॉर्मल गुड. अब हम नॉर्मल गुड को अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी जो कुव्वत खरीद है वो बढ़ गई है, तो वो हम नॉर्मल गुड की तरफ जाएंगे. तो दिस वुड बी ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Either the consumption in case of the price decrease of an inferior good, what would happen is that either the consumption would remain the same or it would decline even further, which for many is surprising, because people would think that look, its price has decreased, so definitely its consumption would increase. Again, make the distinction between a normal good and an inferior good. के इस केस में हम किस गुड की बात कर रहे हैं? क्या वो इंफीरियर कैटेगराइज होता है, क्या वो नॉर्मल कैटेगराइज होता है? और इंफीरियर नॉर्मल जो होता है वो हम इनकम के लिहाज से बात करते हैं, कंजम्पशन के लिहाज से बात करते हैं. सो होपफुली दिस आई क्लैरिफाइड दिस इनफ so that if there lingers any confusion in your mind, it is clarified now. इस चीज को इसलिए मद्देनजर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम प्राइस चेंजेस की बात करते हैं, यहाँ पे अफरात ज़र की बात करते हैं, तो हम सारा को लोग अक्सर ये, और बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग भी ये वो करते हैं, गलती कर देते हैं कि सब चीजें जो होती हैं उसको एक ही उसमें बंच कर देते हैं, इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स की. कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी कीमतें कम होती हैं. अगर आपको यकीन नहीं आता, नॉर्मली जो मैंने कहा कि अफरात ज़र की शरह जो है वो ज्यादा ही होती है, पाकिस्तान में कम नहीं होती, लेकिन ये भी आप नोटिस करें कि जो अफरात ज़र जो होते हैं वो मेजर की जाती है हम CPI से. CPI में बहुत सी चीजें होती हैं, वो सिर्फ एक चीज नहीं होती. CPI जो फिर उनकी एवरेज निकाली जाती है. सो
this is there is this confusion about prices and there is this confusion about goods, which you shouldn't fall into this, because you should be able to distinguish. Although the inflation is normally high, but what makes up that inflation number? How do we calculate that inflation number? It's due to that consumer price index, in the consumer price index there are many things. This is a basket of many goods and they calculate the average price. अब जो एवरेज प्राइस कैलकुलेट की जाती है उसमें कुछ प्राइसेस ऐसी भी होती है, अगर आप उसको बाइफरकेट करें, जिनकी कीमत कम भी होती है, और फिर कुछ ऐसी हैं जिनकी कीमत जो है वो ज्यादा भी होती है. तो अगर जिनकी कीमतें ज्यादा हैं, वो अगर वो 5 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी कीमत ज्यादा होगी और 3 की कम होगी, तो जाहिर है नतीजा यही होगा कि अफरात ज़र बढ़ती हुई नजर आएगी. अब याद रखिए कि डिपेंड करता है कि कौन क्या कंज्यूम कर रहा है. सब एक तरह कंज्यूम नहीं करते. मिडिल क्लास, वेल्दियर क्लास, पुअर क्लास, इनकी कंजम्पशन लेवल जो होते हैं और जो जिन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं वो डिफरेंट होती है, वो परसेंटेजेस डिफरेंट होती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं, वो सब एक जैसी नहीं होती. This is fair observation, this is a common observation, this is in fact a common sense observation. आपको मौका मिले तो कभी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसमें देखें कि वो उन्होंने पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर इस तरह के और वो होते हैं अफरात ज़र की शरह जांचने के लिए सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें होगी, वो सारी उन्होंने वहाँ पे लिखी होती है. उसमें उन्होंने माहाना और हफ्तावार प्राइसेस भी दी होती हैं, हफ्तावार कीमतें भी दी होती हैं. उस किसी एक फाइल को खोलें तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ कीमतें कम भी हो रही हैं, सारी ज्यादा एक साथ नहीं चढ़ रही. ये जो ज्यादा हो रही है इस वजह से होती है कि जो औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, वो ज्यादा हो जाती है. उसमें कीमतें कम भी हो रही हैं. उससे आप देखेंगे कि जिन चीजों की कीमतें कम हो रही, कीमतें बढ़ रही हैं, वो आपको एक अंदाजा सही देगा कि असल में हो क्या रहा है, कहाँ पे किस तबके को नुकसान पहुंच रहा है, किस तबके को जो है फायदा हो रहा है, कितना नुकसान नहीं पहुंच रहा, क्या हो रहा है वहां पे. तो ये चीजें जो है एज ए पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट, ये आप लोगों को डिस्टिंग्विश करना पड़ेंगी. ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस गुड की हम बात कर रहे हैं, क्या वो नॉर्मल गुड है, क्या वो इंफीरियर गुड है, लोग उससे दूसरे मुतबादिल की तरफ जाएंगे आपके ख्याल में, नहीं जाएंगे, क्या इनकम इफेक्ट क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या हो रहा है, ये चीजें जो हैं ये मद्देनजर रखें. दीज आर द वेरी बेसिक्स. सो एनीवे, दिस वाज demonstration of the inferior and substitution effect and the total effect. Now we'll move towards the question of what happens in the case of price of oil and electricity changes. So let's move towards that. It will be a short, simple explanation and analysis. Hopefully it wouldn't be a big bother for you. Okay, welcome back. So we now want to discuss what happens to the prices of what happens to the consumption of electricity and price of oil when not the price of oil but the consumption of electricity and consumption of oil when the price changes. Suppose price increases. Price goes up. Now before you make this analysis, and now I want you to draw this graph by yourself so that you can understand what is happening over here. Definitely I'll help you out. I'll give you the basics. I'll take you step by step. First step, distinguish between inferior and normal good. सबसे पहले आपने ये डिस्टिंग्विश करना है. ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके ख्याल में कौन सा गुड है, क्या होता है उसकी कंजम्पशन को, जब उसकी कीमत बढ़ती है उसकी कंजम्पशन पे क्या असर पड़ता है. These are normal goods. जब इनकी कीमतें बढ़ती है तो इनकी ओवरऑल कंजम्पशन जो होती है, अगर आप इंडिविजुअल के लिहाज से बात करें, हाउस होल्ड के लिहाज से, तो यू टेंड टू सी डिक्लाइन इन देयर कंजम्पशन और ओवरऑल कंजम्पशन. सो
these are considered normal goods, not inferior goods. ये दोनों नॉर्मल गुड्स है, ठीक है जी, इसको आपने कैटेगराइज कर लिया। हम सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरे मुशाहिदे में एटलीस्ट आया, बहुत से लोगों के मुशाहिदे में भी आया होगा कि कीमत ज़्यादा होने की वजह से भी उसकी कंजम्पशन पे कोई खातिर खा इजाफा फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह की चीज़ों पे। ऑयल होगी या इलेक्ट्रिसिटी होगी, या मेरे ख्याल में आप लोगों में से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके जहन में ये सवाल होगा। लेकिन अभी हम सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं। दीज आर नॉर्मल गुड्स। लेकिन अगर वो नहीं होता, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो याद रखें, आप शायद फिर भूल रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का। वो अभी हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए कि अगर नहीं कम ज़्यादा उसमें कोई कमी बेशी नहीं आती तो वो क्यों नहीं आती, क्या वजह है। एनीवे, फर्स्ट स्टेप इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंफीरियर नॉर्मल गुड। अब आपने डिस्टिंग्विश कर लिया, फिर थिंक अबाउट द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू द परचेजिंग पावर। और परचेजिंग पावर किस चीज से रिलेटेड होती है? इनकम इफेक्ट। एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई एम नॉट राइटिंग इट एज अ होल, थोड़ा सा एब्रीविएट करके पॉसिबिलिटीज को पॉसिब कर दिया, पॉसिबिलिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों कंसिडर कर लिए। फिर ये देखें कि व्हाट डज थ्योरी टेल अस अबाउट दीज इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल गुड्स। विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन लेंगे ये इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? यानी ऑपोजिट होगा या फिर उसके जो would it be against the price change, the direction of price change, or would it be the same as the direction of price change? What would it be? The theory tells us that it would be opposite in case of normal goods. We just did the example, the last one. Okay, now this should now tell you how to draw the graph. It should help you in drawing that graph. It should help you in coming up with that answer about where the indifference curves would be, what the budget line would be, and the changes in there. So draw that graph by yourself now. Look at the previous one, the one that I already drew. Draw the graph by yourself. We'll come back and see what you have drawn and try to compare it, whether yours and my answer match or not. So take out the time, draw the graph. Hopefully by now you've drawn the graph and the indifference curves. In case you haven't and still confused, it's unfortunate. You shouldn't be. It should be clear to you now. But anyway, let me just draw it and give you the simple explanation of what this would look like. In both of these cases, these are normal goods. So you have this original budget line, just like we did in the last example, and due to a price increase in the price of oil or the price of electricity, your budget line comes over here. It comes down, moves over here. This is the budget line. This is also the budget line, the new budget line. So suppose you
your original consumption was somewhere over here, and your indifference curve was here. It's remember, it is supposed to touch this point. This was the original indifference curve, and now what you see over here is that this consumption over here would be something like on this point. It would come over here and match this point, but in reality this would be the income effect, and this would be in reality it would be somewhere here, and you would end up like this, where the indifference curve would be touching, the new indifference curve would be touching this point over here. This is what we did in the last diagram. In case you are getting confused, don't get confused. Go back to the diagram, see how I drew the indifference curves and how we came about this point. So this is the income effect, this is the substitution effect, and both are acting in the same direction because it is a normal good. So in the end the total effect would be from this point to this point. This would be your total effect. Now, is it going to be completely similar for electricity and oil? क्या दोनों इसमें जो चेंजेस होंगी कीमत बढ़ने की वजह से, तेल की कीमत बढ़ने की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से, क्या दोनों में जो चेंजेस होंगी वो बिल्कुल मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस होगा, यानी परसेंटेज चेंज होगी, जो कंजम्पशन में कमी आएगी? इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कमी आएगी। लेकिन जो जितनी कमी आएगी, क्या वो प्राइस ऑफ ऑयल, क्या वो जो ऑयल की कंजम्पशन होती है और इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होती है, उसमें जो कमी आएगी क्या वो बिल्कुल एक जैसी होगी? क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम उसको, कैसे होगी वो? आपके ख्याल में कितनी चेंज होगी, कितनी उसमें कमी पेशी आएगी? अभी जो मैंने आपको शुरू में सवाल पूछा था कि आप लोगों के शायद जहन में ये सवाल हो कि यार हमने तो नहीं देखा कि कोई इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हो रही है या फिर तेल की कंजम्पशन कम हो रही है कीमत बढ़ने की वजह से भी। तो मैंने आपको बताया था कि रिकॉल इलास्टिसिटी ये आपको डिफाइन करेगी, ये आपको बताएगी कि अगर होगी कम कितनी होगी। अब इस चीज में दोबारा कोई शक नहीं है कि कम होगी, मतलब सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट जो है ये एक तरफ आपको खींच रहे हैं। रिमेंबर दिस इज अबाउट, परहैप्स आई नीड टू क्लेरिफाई कि ये आपको थ्योरेटिकली ये बताते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह का बिहेवियर और होना भी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो किस वजह से नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बताता हूं कि इन केस ऑफ, इस चीज को यहाँ पे हम अलहदा कर देते हैं और ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल जो डिस्कस कर रहे हैं, वो इसको मैं इस बॉक्स में लाता हूं कि व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज be the same for electricity and oil। क्या इन दोनों के लिए सेम होगा? Your answer should be something like this. डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी। हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो कंजम्पशन से रिलेटेड होती है जो इलास्टिसिटी, वो होती है डिमांड इलास्टिसिटी। ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात कर रहे हैं। सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अब हम बात कर रहे हैं जो इन दोनों चीजों की, तेल की और बिजली की। अब बिजली का कोई मुतबादिल आपको नजर नहीं आता। बिजली का क्या मुतबादिल है? बिजली आपने इस्तेमाल करनी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। बिजली का कोई मुतबादिल है नहीं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे
कि उसकी कंजम्पशन पे कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ही मिनिमल, शायद कोई फर्क पड़े ही ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंडिफरेंस जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो इस तरह से, डिमांड इलास्टिसिटी कंप्लीटली फ्लैट है। which implies that it is completely inelastic. अब इसको किस तरह शो किया जा सकता है? पहले सपोज कीमत इतनी थी तो कंजम्पशन यहाँ पे थी, अब कीमत इतनी बढ़ गई तो कंजम्पशन फिर भी यहीं पे है। वो इसलिए क्योंकि डिमांड इलास्टिसिटी जो है दैट इज कंप्लीटली इनइलास्टिक। अब जहां पे हम तेल की बात करते हैं तो तेल जो है उसका मुतबादिल मौजूद है, तेल के मुतबादिल मौजूद है। तेल की बजाय डीजल है, तेल की बजाय सीएनजी है। सीएनजी एक अच्छा मुतबादिल है, सस्ता मुतबादिल है। डीजल की तो मैं बात नहीं करूंगा, डीजल महंगा भी होता है, कभी कभार सस्ता भी हो जाता है, लेकिन और उसकी कीमत तकरीबन उसी के कहीं ना कहीं बराबर रहती है। लेकिन कंप्रेस नेचुरल गैस या गैस जो है वो एक अच्छा मुतबादिल है। तो उस सूरत में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर मुतबादिल मौजूद है? माइंड यू, चले आप फॉर द सिंपल सेक ऑफ सिंपल आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं कि मुतबादिल मौजूद है और वाफिर मकदार में मौजूद है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है फिर। अगर वो मौजूद है और वो भी वाफिर मकदार में मौजूद है तो बेशक वो नॉर्मल गुड है। डिमांड इलास्टिसिटी जो होगी वो होगी इलास्टिक, कि अगर तेल महंगा हो गया तो लोग इससे शिफ्ट कर सकते हैं दूसरा किसी मुतबादिल पे, सीएनजी पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो सपोज पहले कीमत इतनी थी, यहाँ पे कंजम्पशन हम लोग इतनी कर रहे थे, कीमत बढ़ गई तो आप देखेंगे कि कंजम्पशन नीचे आ गई। तो इस केस में डिमांड जो है वो इलास्टिक है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि तेल और जो बिजली की कीमतों में वो उतार चढ़ाव होता है उसकी वजह से इफेक्ट एक ही जैसा होगा। अब इसमें भी आप डिस्टिंग्विश करें कि कुछ इलाकों में, recall that in one of the previous lectures I told you that in some areas of Pakistan gas is easily available. I gave you the example of Khyber Pakhtunkhwa where CNG is available every day, 24 hours. That is when there is electricity. So over there, what do you expect the demand curve for the price of oil to be? In case of price of oil, it is elastic from the consumer's point of view. For consumer, the demand curve for oil is elastic. But कम बैक टू पंजाब। पंजाब में क्या होता है कि यहाँ पे एक सवेयर शॉर्टेज है गैस की, यहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से वो जो डिमांड कर्व होती है वो इनइलास्टिक हो जाती है। तो अगर फिर ये होता है कि अगर तेल की कीमत बढ़ भी जाती है तो एटलीस्ट यहाँ पे पंजाब में आपको उसकी इतनी ज्यादा कंजम्पशन पे कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं नजर आएगा, कम पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए कम पड़ेगा कि इसका यहाँ पे जो मुतबादिल है सीएनजी वो मौजूद ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो कम है। तो फिर लोगों को बादले नख्वास्ता क्या करना पड़ता है? जो गाड़ी चलाते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, जाहिर है वो भी तेल भरवाएंगे। तो उस सूरत में जो है वो इफेक्ट वो बहुत कम पड़ेगा। यहाँ पे उसको किस तरह शो करवाएंगे? इन द केस दैट द डिमांड कर्व फॉर ऑयल इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली इनइलास्टिक। इस केस की तरह ये नहीं है कि बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। जो ये है कंप्लीटली इनइलास्टिक कर्व जो है, यहाँ पे हम कहते हैं कि रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक को जो है हम किस तरह शो करेंगे डिमांड कर्व को? वो इस तरह शो करेंगे। ठीक है जी। तो कीमत अगर यहाँ पे है और इतनी कंजम्पशन हो रही है तो कीमत अगर बहुत भी बढ़ जाए तो कंजम्पशन में कम ही फर्क आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। ये है उस जगह की बात कर रहा हूं मैं, उन जगहों की मैं बात कर रहा हूं जहां पे तेल का कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है। Crux of my argument over here is that
you have to take this step by step. You have to consider many things. यहाँ पे आपने देखा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर पहले तो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो गुड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस केस में मैंने आपको मिसाल दी तेल की कीमत की और बिजली की कीमत की। क्या वो नॉर्मल है? हाँ जी, उसको हम नॉर्मल कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट कि अगर हमारी आमदन बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन भी इन दोनों चीज़ों की बढ़ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह होता है। अगर आमदन बढ़ जाती है तो फिर कंजम्पशन भी इन दोनों चीज़ों की बढ़ती है। आप बिजली भी रिलेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहले अगर एसी नहीं इस्तेमाल कर रहे होते थे, कम 1 घंटा चलाते हैं, आमदन बढ़ गई तो फिर 2 घंटा चला लेते हैं, 3 घंटा चला लेते हैं। तेल अगर कम इस्तेमाल करते थे, 3-4 घंटे सीएनजी के लिए भी गैस लाइन में खड़े रहते थे, आमदन बढ़ गई सपोज 5,000, 7,000, 6,000, तो फिर सीएनजी डालना ही छोड़ दी, वो तेल की तरफ चले गए कि अब फर्क नहीं पड़ता, हमें अब तेल डाल लेते हैं बजाय 3-4 घंटे लाइन में खड़े रहे। तो ये जो है ये चीज़ें आपने डिस्टिंग्विश करनी है। यू हैव टू डिस्टिंग्विश दीज थिंग्स। तो ये नॉर्मल गुड्स हैं, क्योंकि जैसी आमदन बढ़ी उसके साथ उनकी कंजम्पशन भी बढ़ गई। तो इसीलिए अगर आमदन बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ जाती है तो हम फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आमदन कम होने के साथ इनकी कंजम्पशन भी कम होगी। अब क्यों नहीं कम हो सकती, और क्या दोनों का इफेक्ट एक ही जैसा होगा कीमत जब बढ़ जाती है? तो उसके लिए हमें ये चीज़ डिस्टिंग्विश करनी पड़ेगी कि इलास्टिसिटी क्या है, क्या उसका कोई मुतबादिल मौजूद है, नहीं मौजूद। अगर इन इलास्टिक है तो फिर क्या नतीजा निकलेगा, और इलास्टिक है फिर क्या नतीजा निकलेगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये चीज़ें कवर की। एक तो दोबारा से मैंने आप लोगों को वो एक जनरल बताया नोटेशन के प्राइस इफेक्ट, जो टोटल इफेक्ट होता है वो किस तरह शो किया जाता है, और फिर इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो किस तरह शो किए जाते हैं। फिर अब मैंने यहाँ पे आपको एक मिसाल दी, जिसे कहते हैं जिंदा मिसाल। वो ये मिसाल है कि बिजली और तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, थ्योरी क्या बताती है और असल में क्या होता है, और अगर जो थ्योरी बताती है उस तरह नहीं हो रहा, कोई वजह है, तो वो क्या वजह हो सकती है, जो कि मैंने बताया कि डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे। तो उम्मीद है कि ये डिस्टिंक्शन अब आपको समझ आ गई होगी, ये क्लियरिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पॉलिसी एनालाइज करेंगे, खास तौर पे जब वो पॉलिसीज होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्राइस फ्लोर की होगी, वीट सपोर्ट, गंदम की सपोर्ट प्राइस जो होती है, उस तरह की पॉलिसीज होगी। ये प्राइस सपोर्ट्स जो होती है ना जी, और ये इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला ये होता है कि इससे वेलफेयर कम हो रही है इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से। तो अक्सर वो होता है कि इन्फ्लेशन को किस तरह कम किया जाए, तो उसमें पहले ये डिस्टिंग्विश करें कि कितना फ़र्क पड़ रहा है और कौन से गुड की हम बात कर रहे हैं, और फिर बाद में पॉलिसी की तरफ बंदा आता है कि क्या हो सकती है पॉलिसीज। अभी हम आगे और भी मज़ीद मिसालें एवरीडे फ्रॉम एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे, लेकिन for this lecture at least we are done. Hopefully you are up to date with these things now, you have a good grasp of these things now, and hopefully I was able to explain it to you clearly. So till the next lecture, Allah Hafiz, take care and have a nice time.